Good morning, students. Today is our fourth lecture. So, I will start today from the comprehension passage, which is drove roads. I have told you to read this thoroughly and underline the difficult words and find out the meanings from the dictionary. You have done, you have practiced doing comprehension in your previous classes. When you attempt comprehension, few things you have to keep in your mind. First of all, you have to read the passage thoroughly. Then again read it and underline the difficult words plus the important points which you see and which you find very important in the passage. Just underline them and then you read the questions at the end of the comprehension part and then you seek the answers from the passage. Find out the answers and then you write it in your own words. So, the first passage is drove roads. First of all, we will underline the word drove. Drove is the second form or past form of drive. You see that what is drive, what does drive mean? You know it. To drive something, to drive a car. But here the drove roads, drove here the means that drove means that the animals, the group of animals which are driven together to far off distances. So here the meaning of drove means एक ग्रुप जो कि एनिमल्स का और उसको काफ़ी दूर डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कराया जाए उसको हम क्या कहते हैं ड्रोव. So drove roads. I will read it and you have to open page number 1 and see where I am reading. Kindly open your books. Many years ago, the inhabitants of Europe drove large herds of cattle along broad grassy tracks which came to be known as drove roads. Okay, inhabitants, underline the word inhabitants. Inhabitants means the people or a species, the living thing that lives in a habitat. कोई भी एरिया किसी लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी एरिया जिधर वो रहते हैं उनको हैबिटेट कहते हैं और रहने वालों को इनहैबिटेंट कहते हैं कि ये इस एरिया में रहते हैं, ये इसके इनहैबिटेंट है और हैबिटेट उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. यूरोप के जो इनहैबिटेंट्स थे वहाँ के रहने वाले लोग वो बड़े बड़े हर्ड्स ऑफ कैटल को लेके बड़े बड़े दूर ट्रैक्स पे लेके जाया करते थे और वो ग्रासी ट्रैक्स होते थे, साइड्स पे ग्रास होता था और वो उसके ऊपर मूव करते थे जिसको ड्रोव रोड्स का नाम दिया गया. Sometimes they traveled a long way in search of fresh pasture when their own land was not rich enough for their cattle to be fattened on. Okay, fresh pasture. Pastures mean the grass or the greenery for the animals on which they feed. जो वो खाते हैं उनको पास्चर कहते हैं. उस एरिया को जहाँ पे वो ग्रो किया जाता है उसको हम खाने वाली चीज़ को हम पास्चर कहते हैं. यू कैन फाइंड इट ओवर योर डिक्शनरी ऑन योर डिक्शनरी. आपको मैंने कल भी कहा था कि मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी डाउनलोड कर लें. इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर प्लस एप्पल प्ले स्टोर. ओके, सो वो इसके लिए पैस्चर्स के लिए ट्रैवल करते थे समटाइम्स ताकि उनको अच्छा खाना मिल सके उनके एनिमल्स को, उनके कैटल को, शीप्स को. So sometimes they were going to distance market when they were not enough rich locally to buy their meat. और कुछ टाइम पे वो दूर दूर मार्केट्स में जाके अपने शीप्स वगैरह और अपनी जो कैटल वगैरह उनको सेल आउट किया करते थे क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे इतने रिच लोग नहीं थे, अमीर लोग नहीं थे जो उसको खरीद पाते, गोश्त खरीद पाते उसका. The earliest routes followed the dry highland avoiding swamps and the danger of surprise attack. So जो एरियाज़ पे वो जाते थे वहाँ पे वो सबसे पहले
अवॉइड करते थे कि स्वैम्प्स, द एरिया विच इज़ कवर्ड विद वाटर इज़ नोन एज स्वैम्प, जिधर पानी हो, पानी को क्रॉस करना पड़े, वो ड्राई लैंड्स के ऊपर ट्रैवल करते थे। और इस चीज़ को भी वो नोटिसेबल रखते थे कि कहीं से कोई जानवर हम पे अटैक न कर दे, क्योंकि उनके पास शीप्स होते थे, लायन, चीता, इस तरह की जो एनिमल हैं वो फ़ौरन से अटैक करते हैं शीप्स वगैरह पे, गोट्स पे। Later, the tracks ran along lower ground when people had settled at those levels and where springs were to be found. So, जिन ट्रैक्स के ऊपर वो ट्रैवल करते थे, फिर ऐसा ऐसा वहाँ पे लोगों ने क्या किया, सेटल होना शुरू कर दिया, वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। Although large numbers of men and boys helped to drive the cattle, the true drover was the man with the overall responsibility to the owner. So drover किसको कहा जाता था? Drover was a man जिसके ऊपर सारी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती थी। आल्दो उसके अंदर काफ़ी लड़के और काफ़ी मर्द होते थे, इंस्टेड ऑफ डैट वो क्या करते थे, एक इंचार्ज होता था उस पूरी ट्रैवलिंग का, कि ये ट्रैवलिंग के अंदर ये इंसान इस चीज़ का इंचार्ज होगा और ये लेके जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हमारे जितने भी एनिमल हैं। He had to take complete charge of the animals for the length of the journey, जो मैंने बता दिया आपको। He alone was made answerable for large sums of money which came from the sale of the cows and which he would eventually hand over to the owners. So उसने एक और चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी कि जितनी भी एनिमल या कॉज वगैरह, शीप, कैटल जो बिकते थे, सेल आउट होते थे, उसका हिसाब भी उसके पास होता था, उसके पैसे भी उसके पास होते थे। तो ही हैज़ टू हैंड ओवर टू द ओनर, जो ओनर होता था उन शीप्स वगैरह, गोड्स का, ये सेल आउट करके उनको जाके उनके पैसे देता था। ही वॉज ऑल्सो आंसरेबल फॉर एनी मिसबिहेवियर ऑफ हिज मैन। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम बीइंग क्रूल टू द कैटल, एन ऑफेंस विच कुड मीन इम्प्रिजनमेंट। एक और उसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसके जो लोग हैं जो उसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसके कैटल्स को साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके साथ, वो मिसबिहेव ना करें, वो कोई गलत हरकत ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी बिना के ऊपर वो ऑफेंस माना जाए। लाइक उसने एग्जांपल भी दी है कि क्रूल्टी, उसको जुल्म नहीं करना चाहिए कैटल के ऊपर, जानवर के ऊपर, ये चीज़ मद्देनज़र रखती थे। अगर वो ऐसा करेगा जो भी इंसान, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है इंसान को कैद कर देना, कैद में डाल देना। दिस थर्ड पैराग्राफ, दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टुक प्लेस ओवर वास्ट डिस्टेंसेस, often hundreds of kilometers, and required much organization, which was the sole responsibility of the drover. So बड़े बड़े दूर डिस्टेंसेस थे, अब टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वो ड्रोव करते थे, इनको लेके जाते थे। और ये उसकी ड्रोवर की जो उसका रिस्पॉन्सिबल होता था, उसका जो केयर टेकर होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इसने इस चीज़ को कवर करना है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अपनी जितनी भी कुव्वत है उसको पुट ऑन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। A constant worry was providing sufficient quantities of food for the hungry cattle, which needed enormous amounts of food to sustain them throughout the journey. सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती थी और वरी होती थी, टेंशन होती थी, वो ये होती थी कि जो आप कैटल लेके जा रहे हो, जो आप शीप लेके जा रहे हो, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको उनके खाने का सामान प्रोवाइड करना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कैटल्स के साथ इतना ज़्यादा सामान कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता था और उन सबको फीड करवाना बहुत मुश्किल था। तो ये चीज़ वरीड होते थे वो उसके ऊपर। इट वॉज लाइक फीडिंग एन आर्मी, एक्सेप्ट दैट द ड्रोवर हैड नो वैगन ट्रेन लोडेड विद सप्लाइज टू फीड हिज आर्मी ऑफ कैटल। ही हैड टू रिलाई ऑन द फूड दैट कुड बी फाउंड अलोंग द वे। सो कहते हैं वो ऐसे ही था, इन शीप्स को, गोड्स को और ये कैटल, हर्ड ऑफ कैटल को खाना खिलाना ऐसे ही था जैसे कि आप एक आर्मी को फीड कर रहे हैं। सो आपको पता है जब भी यूनिट या आर्मी मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपना फूड साथ लेके जाते हैं, उनके पास ट्रक्स होते हैं, उनके पास वैगन्स होती हैं,
जिनके अंदर वो अपना फूड कैरी करते हैं, लेकिन उसके पास कोई ऐसी वैगन वगैरह नहीं थी होती रोवर्स के पास। सो वो किसके ऊपर रिलाई करते थे, वो किसके ऊपर अपना एतमाद रखते थे कि हम जब जा रहे होंगे तो हमें लॉन्ग साइड रोड्स हमें कुछ फूड वगैरह मिलता रहेगा और उसके ऊपर हम अपने जो जानवर हैं उनको हम फीड करवा देंगे। He also showed great skills in maneuvering these herds which sometimes numbered as many as 200 animals, often spread out over considerable distances. अब क्या होता था, उसको मैनोवर करना भी आता था, उनको कंट्रोल करना भी आता होता था, क्योंकि समटाइम्स वो कहते हैं 200 से भी ज़्यादा हो सकते थे जो एनिमल्स होते, और उनको किसी किसी जगह पे वो स्प्रेड आउट हो जाते थे, फैल जाते थे, लेकिन ही हैज़ द कंट्रोल टू कंबाइन देम, उनको फिर से एक रोड के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर लेके आना और उनको सीधा रास्ता दिखाता था वो। फ्रिक्वेंटली ही हैड टू राइड अहेड ऑन हॉर्स बैक to check the wandering instinct of the cattle, redirecting them along the right track, or follow behind to urge them on, or bring back stragglers which had got left behind. He had to be particularly careful that the cattle did not stray into private land to feed. Okay, so वो कहता था खुद वो हॉर्स के ऊपर या तो आगे सवार हो जाता था, उनके आगे लग जाता था ताकि उनको राइट ट्रैक पे चला सके, या सबसे पीछे रहता था ताकि वो देख सके कोई भी अगल बगल या साइड्स के ऊपर मूव ना कर सके कोई भी एनिमल, और कहीं पे वो पीछे ना रह जाए या गुम ना हो जाए, कहीं साइड पर निकल जाए। तो उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसने एक ट्रैक पे उसको रखना है और अपने साथ लेके उसको चलना है। Okay. He had to be particularly careful that the cattle did not stray into private land to feed. Such trespass could be punished by the cattle being driven into a fenced enclosure by the landowner until the drover had paid for any damage they had done. So उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता था कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ना वो घुस जाए, वो खाना खाते खाते, घास वगैरह खाते खाते या प्लांट्स वगैरह खाते खाते वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ना घुस जाएं। प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको, उसने फेंस का वर्ड यूज़ किया। फेंस होती है जो आपकी बाउंड्री होती है ना घर की। अब तो दीवारें होती हैं, पहले लकड़ी की बाउंड्रीज होती थी, आपने शायद देखी हो किसी मूवी वगैरह में कि फेंस वो ऊपर से ऐसे होती थी उसकी टिप, और इसी तरह ही फेंस बनी होती थी ऐसे करके ना, ऐसे करके फेंस होती थी वो दीवारों के ऊपर लगाई जाती थी। आज भी आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को चीज़ मिल जाती है कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाउंड्री के साथ उन्होंने लगाया होता है, और सम यूजेस तारें यूज़ कर लेते हैं वो लोहे की, ठीक है, ताकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना घुसे। तो वो कहते हैं उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता था कि कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ना किसी की घुस जाए। अगर वो घुस गया तो उन्होंने कोई भी अगर डैमेज किया तो ओनर को, ड्रोवर को, जो ड्रोवर है लेके जा रहा है, उसको उस प्रॉपर्टी के ओनर को पैसे देने होते थे कि जो भी वो डैमेज करेंगे। Then too he had to be on the lookout for farms which lay on his route and blow a horn to warn the farmers of his approach, so that the farmer would have ample time to prepare. Imagine the confusion if the farmer's own cattle were to get mixed up with the traveling herd. Many hours would be spent in sorting them out and quarrels would break out over disputed ownership. अब वो क्या करता था, उसको एक और चीज़ का भी ख्याल रखना होता था कि मेरे जो एनिमल्स हैं या मेरे जो कैटल हैं वो किसी ऐसी जगह पे ना चले जाएं जहाँ पे पहले से कैटल मौजूद हों या किसी का फार्म हो, तो वो पहले से वो विसल करके सायरन हॉर्न बजा के वो दूर से आगाह कर देता था किसी भी फार्मर को कि ये मेरे कैटल आ रहे हैं, तो आप अपने कैटल्स को साइड पे कर लें। नहीं तो अगर दोनों मिक्स हो गए तो वो बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं थे कर पाते। हाँ, इंसानों की तरह तो नहीं ना, आपको पता है, आप गोड्स देखते हो कुर्बानी के ऊपर, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा पे आप एनिमल देखते हो घर में आपके, उनको
ज़िबा किया जाता है, तो वो सारे तकरीबन एक तरह के ही लगते हैं देखने में। तो इंसान तो डिस्टिंग्विश हो जाता है, लेकिन वो नहीं हो पाते थे, तो वो बड़ी मुश्किल से अलग अलग करने में बड़ी देर लग जाती थी, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको कि वो मिक्सअप होने से उनको बचाए। सो पैराग्राफ 4, कंट्रोलिंग अ लार्ज हर्ड वॉज समटाइम्स अ डेंजरस जॉब. Cattle are easily frightened by sudden loud noises. For instance, a herd crossing a wooden bridge in which the planks rattled noisily would break away in uncontrollable panic, and it would take hours to calm and reassemble them. एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, जो बड़ा उसके लिए वरीड होता था वो ड्रोवर जो था, वो ये थी कि एनिमल्स ज़्यादा साउंड से और ज़्यादा आवाज़ से डर जाते हैं. सो अगर कहीं पे भी ज़्यादा आवाज़ आ जाती थी तो वो भाग जाते थे, बिखर जाते थे. सो उनको दोबारा से असेंबल करना बहुत मुश्किल होता था. तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनको कम से कम नॉइज़ दिया जाए और उनको नॉइज़ से बचाया जाए. The drover also had to cope with bands of robbers who might violently attack him for his money or drive off some of his cattle. अब एक और चीज़ से भी वो डरता था, रॉबर से, लूटने वालों से जो चोरी करते थे. वो डरता था कि मेरे पास जो पैसे हैं जो मैंने बेच के कैटल लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे आएँ और मुझसे लड़के या डरा धमका के मुझे वो पैसे ना ले जाए, और या मेरे शीप ना ले जाएं, मेरे जो ये कैटल हैं इनको ना ले जाए. बट it was the actual paragraph 5, but it was the actual handling of the cattle that called for his greatest skills. He had to have an intimate knowledge of the temperament of his animals in order to judge how far and how fast to drive. They must not be overdriven, for it was essential that they reach their market in prime condition. Rest days would therefore be necessary before there would be keen competition between drovers arriving at an important market to get the best prices from the butchers who could quickly assess the condition of the animals. अब वो क्या करता था, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके ग्रेट स्किल्स थे. एक और इसके अंदर ग्रेट स्किल था, वो ये होता था कि इसको अपने जो कैटल हैं उनकी कंडीशन का पता होता था कि ये रोज़ कितने किलोमीटर चल सकते हैं, और उनको ज़्यादा ओवर ड्रिवन भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं चलाना कि वो कमज़ोर हो जाएं या वो बिल्कुल कमज़ोर से लगना शुरू हो जाए. सो ये चीज़ भी उसको अपने माइंड के अंदर रखनी होती थी, क्योंकि अगर वो मार्केट पहुंचेगा और उसके जानवर अगर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे तो उसको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी. सो वो कोशिश उनकी यही होती थी कि अच्छी प्राइस मिले ताकि वो सेहत में रहे, जानवर अच्छा रहे, तवा ना रहे, ताकि उसको अच्छी से अच्छी प्राइस के अंदर सेल आउट किया जा सके. लास्ट पैराग्राफ, अ ड्रोवर नीडेड close knowledge of the country through which he traveled, some of which was very wild and gave cover to robbers. If possible, he avoided the hard roads which injured the cattle's feet and their toll gates where travelers had to pay money to pass through. Okay, आपने अक्सर ये जीटी रोड पे या मोटरवे पे ट्रैवल किया होगा तो वहाँ टोल प्लाजा होता है. तो वो कहता है एक तो वो कंट्री जिस कंट्री में ट्रैवल करता था उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए था उसको, ताकि वो ऐसे रास्ते अवॉइड कर सके जहाँ पे उसको ये लूटने वाले ना मिलें, रॉबर्स ना मिल जाएं, या टोल गेट्स ना मिल जाएं. टोल प्लाज़ा जिस तरह आप पैसे देते हो और रोड के ऊपर ट्रैवल करते हो, उस तरह वो टोल गेट्स के अंदर पैसे दे के फिर आगे जाया जाता था. तो वो कहता था ये चीज़ को वो अवॉइड करते थे. ही चूज़ द ब्रॉड ग्रीन ट्रैक्स along. Here the herd could move in safety, sometimes foraging through the shrub on either side or sometimes stopping to graze. Above all, a drover had to have honesty, endurance, patience and courage. The progress of the cattle could be wearisomely slow, mainly because of their enormous appetites, and normally they traveled only about 10 kilometers a day. At night, whatever the weather, the drover usually slept rough with the cattle. अब क्या होता है
कि वो कहते हैं वो मोस्टली ऐसे रास्ते चूज़ करते होते थे जिसके ऊपर ग्रास हो, ग्रासी लैंड्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने जो कैटल हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड हो सके उनको। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर वो एक दिन में चला करते थे ताकि उनके पाँव वगैरह ज़ख्मी ना हो जाएं, ताकि उधर पहुंच के उनको पैसे कम ना मिलें कि ज़ख्मी है आपका ये कैटल वगैरह शीप। और वो काफ़ी खाया करते थे। और समटाइम्स वो कहते हैं जितना भी आराम मौसम होता था, जो ड्रोवर था उसको उन्हीं के बीच में सोना पड़ता था बुरी कंडीशन के अंदर। तो वो बड़ा मेहनत वाला काम होता था जो ये लोग करते थे। नाउ अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाएं, आपने जब इसको रीड करना है दोबारा से, एक बार तो अभी आपने कर लिया मेरे साथ, आपने वर्ड्स भी अंडरलाइन करने हैं, उनके मीनिंग्स भी देखने हैं। उसके बाद वर्ड बैंक भी है हमारा, यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, उनके सिनोनिम्स भी लिखे हैं। सिनोनिम्स आपको पता है मुतरादिफ अल्फाज होते हैं उर्दू में, उसको कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज जो हैं, उनके सिनोनिम्स भी लिखे हैं। अब ये इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आपने क्या करना है कि अब जब दोबारा रीड करना है आपने उसको अंडरलाइन करना है, इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। नोट्स के ऊपर अगर आ जाए, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम्स द ड्रोवर मेट एंड व्हाट दे डिड टू डील विद देम एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। अब पैसेज के अंदर वो कहता है जो जो प्रॉब्लम्स एक ड्रोवर को आती थी वो आपने बतानी है, उसको नोट डाउन कर लें, नोट लिख लें उसके ऊपर। और जो जो उन्होंने किया उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उसको सॉल्व कैसे करता था, उसको डील कैसे करता था वो। यूज़ ओनली द मटेरियल फ्रॉम पैराग्राफ 3 टू द एंड ऑफ द पैसेज। आपने यहाँ से फर्स्ट पेज पैराग्राफ 3 से शुरू करके एंड तक 6 पैराग्राफ के एंड तक आपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और उनकी जो डील करने का तरीका था ड्रोवर्स का उसके साथ, उन प्रॉब्लम्स के साथ आपने वो भी लिखना है नोट्स के अंदर। अपने नोट्स पॉइंट्स की शक्ल में बना लें कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ड्रोवर्स एंड हाउ दे डेल्ट विद दैट। ठीक है, ओके। अच्छा, एट दिस स्टेज यू नीड नॉट यूज़ योर ओन वर्ड्स। ये भी एक उसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको अपने वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने वर्ड्स में लिखें। ज़रूरी नहीं है, जो लिख सकता है लिखें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉइंट उसी के अंदर से जो लिखा हुआ है और उसका जो डीलिंग का तरीका था ड्रोवर का, वो आप उसी के अंदर से उन्हीं के वर्ड्स में, राइटर के वर्ड्स में लिख सकते हैं। समरी मोस्टली आप जो कॉम्प्रिहेंशन करते हैं या तो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड पे, मेन आइडिया मिल जाता है, थीम ऑफ द स्टोरी मिल जाता है, या आपको क्या मिल जाती है, समरी मिल जाती है। आपने समरी लिखनी है इसकी, तो समरी के लिए आपको वो जो पॉइंट्स हैं बड़ा हेल्पफुल होंगे, जो आप पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे आप रीड करते दोबारा। आप जो मेन पॉइंट्स आपको अभी मैंने रीडिंग कर दी, आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो जो आप पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वो बड़े बेनिफिशियल होंगे। और उसके लिए आप जो जो अंडरलाइन करोगे वो पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे व्हेन यू आर राइटिंग अ समरी ऑफ दैट। नाउ यूज़ योर नोट्स टू राइट अ समरी। ये जो नोट्स आपने ऊपर वाले भी बनाए हैं और उससे ऊपर दो जो पैराग्राफ है उनमें से भी नोट्स निकाल लें आप। in which you explain the problems that drover met and what they did to deal with them as described in the passage। अब जो वो थर्ड पैराग्राफ से लेके लास्ट 6 पैराग्राफ के जो आपका पैसेज है उसके एंड तक वो कहते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं और उन्होंने कैसे उसको डील किया है, वो पॉइंट्स आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी समरी के अंदर और उसके बारे में लिख सकते हैं। दिस टाइम यू नीड टू यूज़ योर own words wherever possible and for accurate use of English। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं समरी के लिए, और जितनी अच्छी एक्यूरेट इंग्लिश आप लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करें। टेंस का ख्याल रखें, अपनी वर्डिंग का सेंटेंसेस प्रिसाइज लिखें, शॉर्ट लिखें, ताकि कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का ख़तरा हो। Your summary which must be in continuous writing not note form should be around 160 words। नोट की फॉर्म में समरी नहीं लिखनी है आपने। समरी जो आपने लिखनी है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगी या 2 पैराग्राफ्स में हो सकती है। इट शुड बी एट लीस्ट ऑफ
अराउंड मतलब कि तकरीबन 160 वर्ड्स की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द 10 वर्ड्स गिवन बिलो, और ये 10 वर्ड्स उसके अंदर हों। आप वो कहते हैं इस तरह से समरी अपनी स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन आप स्टार्ट करें, द ड्रोवर्स हैड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉन्ग। आगे से आप यहाँ लॉन्ग से आगे जो भी लिखना चाहते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर आपने पॉइंट्स नोट्स बना लेने हैं, और उसको आपने कंबाइन करके और अपनी वर्डिंग के अंदर आपने उसको क्या करना है, लिख देना है समरी को। 160 वर्ड से एक्सीड ना करें। मेन पॉइंट्स जो हैं जो आपने अंडरलाइन किए हैं, मेन पॉइंट्स को लिखें उसके अंदर। ओके, द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पैराग्राफ 1, फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका फर्स्ट पेज के ऊपर, राइट वन फैक्ट। फैक्ट, व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट इज समथिंग विच इज़ रियलिटी, जो रियल हो, जो फैक्ट हो, जो प्रूव्ड हो। मतलब कि इसके अंदर एक फैक्ट होगा पैराग्राफ के अंदर जो सच्चाई है बिल्कुल, वो आपने लिखना है। एंड वन ओपिनियन, ओपिनियन होता है द वे ऑफ थिंकिंग, कोई कैसे सोचता है, किसी की थिंकिंग का वे, समवंस पर्सपेक्टिव, जो उसका आइडिया है किसी चीज़ के बारे में, उसका ओपिनियन बन जाता है, उसकी मतलब कि थिंकिंग बन जाती है कि ये चीज़ ऐसे है। वो आपकी भी थिंकिंग हो सकती है और राइटर की भी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से आपने एक फैक्ट ढूंढना है जो सच्चाई है, और एक आपने ओपिनियन ढूंढना है कि ये हो सकता है, ये मतलब कि ये थिंकिंग है राइटर की क्यों ऐसे। चूज़ द करेक्ट आंसर। ड्रोवर्स ओनली वरीड अबाउट कैटल। Drovers did not worry about cattle. Drovers worried about both cattle and other things. ये लास्ट वाला ठीक होगा क्योंकि वो कैटल के बारे में भी सोचता था और बहुत सी और चीज़ों के बारे में भी ड्रोवर्स जो हैं सोचते होते थे, रास्ते के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, ताकि वो सारा कैटल्स के लिए बेनिफिशियल हो सके। अगर हम वर्ड बैंक पे आएँ तो डिस्टेंट एक आपका वर्ड है विच इज़ एन एडजेक्टिव। साथ उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी लिखा हुआ है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब आगे उन्होंने सिनोनिम्स भी दिए हैं, उसके बाद उसका मीनिंग भी दी है। आगे उन्होंने एक सेंटेंस के अंदर भी यूज़ किए। आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, राइट इट डैट पेज नंबर 3 यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स। वर्ड बैंक में से ये वर्ड्स, इनके मीनिंग, ये एडजेक्टिव या नाउन वगैरह जो साथ लिखा हुआ है ये लिखना है, मेंशन करना है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, और इनको अपने आपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। ये वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने जो यहाँ पे लिखे, खुद से लिखने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने हैं जिसके अंदर इसका मीनिंग वाज़ेह हो जाए। ये आप खुद पढ़ लोगे ईजीली। और एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स, काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स दिए हैं इन्होंने, आपने एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स जो हैं वो लिखने हैं। सो आगे हम एक्टिविटी पेज पे आ जाते हैं। ये मैं चाहता हूँ आज चैप्टर हम ख़त्म कर लें और आपके पास 2 दिन होंगे अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए, मतलब कि आज का दिन और कल का सारा दिन, और आप बाय फ्राइडे आप ये सारा काम करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे पिक्चर्स लेके। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अगर डिस्कशन पे आए हम तो ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस है, ये बड़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं। पहली क्या है, टू बी बिग इनफ टू एडमिट योर मिस्टेक। आपको इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अपनी ये मिस्टेक्स जो हैं, गलतियों को, उसको मान सकें कि ये मेरी गलती है। टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू करेक्ट दैम, और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकें, उनको गलतियों को सुधार सकें। टू बी वाइज इनफ टू प्रॉफिट फ्रॉम दैम, और उनसे प्रॉफिट कैसे लेना है ये भी आपकी थिंकिंग होनी। बी स्मार्ट इनफ टू मेक अदर्स थिंक इट वाज ऑल पार्ट ऑफ योर ब्रिलियंट प्लान, और इतना स्मार्ट आपको होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए कि सबको लगे कि ये जो आपने गलती की है ये आपके एक प्लान का हिस्सा थी। एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड टेल हाउ फार डू यू एग्री विद देम। डिस्कस योर आइडियाज़ विद योर फेलोज। ये आपने एक्टिविटी करनी है, ये बुक के ऊपर ही आप कर लें कि आप इससे एग्री करते हैं या कितना करते हैं, या आप एक कॉपी के ऊपर लिख के, इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो
तो आप कर पाओगे, ठीक है, आप करोगे। एंड इफ़ यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। और अगर आप सोचते हैं कि ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अक्सर वो कहते हैं कि रेस हमेशा वो हारता है जो शुरू होने से पहले अपनी हार तस्लीम कर लेता है, जो पहले ही सोच लेता है कि मैं हार चुका हूँ। कभी भी वो नहीं हारता जो रेस करे और एट द एंड वो उसको डिफीट हो जाए, वो हारा हुआ नहीं होता। उसको एक और एम मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैंने इससे भी अच्छा करना और मैंने जीतना, उसको एक एम मिलता है। लेकिन जो शुरुआत से पहले हार जाए, हार मान ले, अपनी हार को तस्लीम कर ले, वो कभी भी जीत नहीं पाता। ये हेनरी फोर्ड कहता है। और आपने बताना है कि ये सक्सेस के लिए, ये आप इस चीज़ के साथ कितना एग्री करते हैं कि ये ठीक कह रहा है बंदा। आप इसका ये लिख के, थिंकिंग, इसका कोट लिख के आप नीचे अपना आइडिया बता सकते हो कि ये ठीक चीज़ ठीक है आपके, आप क्या सोचते हो उसके बारे में कि ये सच है कि नहीं सक्सेस के लिए। सेकंड देख लेते हैं, एल्बर्ट श्वेट्ज़र ने जो लिखा है, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। सक्सेस खुश होने की वो चाबी नहीं है कि आप सक्सेस से खुश नहीं होते। आपको हैप्पीनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको खुश होने के लिए सक्सेसफुल नहीं होना ज़रूरी। हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। खुश रहने से सक्सेस आती है, सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं आ जाती, खुश रहने से आल्दो सक्सेस आ जाती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सक्सेस हैज़ अ सिंपल फार्मूला, डू योर बेस्ट एंड पीपल मे लाइक इट। अब लास्ट वाला जो है, सैम इन जो है, वो कहते हैं कि सक्सेस इज़ अ सिंपल फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला है जो सक्सेस है आपकी कामयाबी। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दें, हार्ड वर्क करें, एंड हो सकता है कि लोग उसको पसंद करना शुरू कर दें। एक्टिविटी 2, ये आपने सारे देख लेने हैं, एग्री लिख लेना है कि स्ट्रांगली एग्री, कैसे आप एग्री करते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। एक्टिविटी 2, राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड यूज देम टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन विद योर फेलोज। आपने ये राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड यूज देम टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन। आपने इस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस ऑफ योर स्कूल, आपने अपने स्कूल की सक्सेस को कैसे डिफाइन करना है कि स्कूल में सक्सेस क्या होती है। फॉर योर सेल्फ एट होम, आपके घर के अंदर आपकी सक्सेस क्या है। फॉर योर सेल्फ एज एन इंग्लिश स्टूडेंट, और आपके लिए इंग्लिश स्टूडेंट होने के सक्सेस क्या है, मतलब कि आप एक सक्सेसफुल इंग्लिश स्टूडेंट कब बनोगे और कैसे बनोगे। ये सारी चीज़ों को आपने आंसर करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं इसको। हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस फॉर योर सेल्फ एज एन इंग्लिश स्टूडेंट, और हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस फॉर योर सेल्फ एट होम, हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस फॉर योर स्कूल, और आपके स्कूल के अंदर आपकी सक्सेस कैसे होगी। ये सारी चीज़ों को आपने इसका आंसर करना है। एक 2 लाइन का आप आंसर लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड यूज देम टू बिगिन अ कन्वर्सेशन विद योर फेलोज। आपने ये क्वेश्चन रीड करने और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, आजकल आप स्कूल नहीं आ पा रहे, सो आप स्कूल के दोस्तों के साथ की जगह आप क्या कर सकते हैं कि यू शुड डू इट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स और पेरेंट्स और वॉट एवर योर ब्रदर्स सिस्टर्स। आप किसी के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस इट विद एनीवन एट योर होम और इन योर नेबरहुड और फ्रेंड्स जो भी आपके करीब रहते हैं। हाउ मच डू यू थिंक सक्सेस डिपेंड ऑन, आप क्या समझते हैं कि कितनी फीसद या कितनी सक्सेस डिपेंड करती है इन 3 चीज़ों के ऊपर। आपने अलग अलग हेडिंग देनी है कि वर्किंग हार्ड, आप क्या समझते हैं कि कितनी सक्सेस आपकी जो है डिपेंड करती है वर्किंग हार्ड में। आई थिंक सो अप टू 80 to 70 to 80% द सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेगा। देन कम्स द ऑप्टिमिज्म। हम बड़ी जल्दी दिल तोड़ देते हैं, दिल छोड़ देते हैं कि यार ये काम जो मैंने शुरू किया ये ठीक नहीं होगा और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान।
अपनी दिमाग में आपने नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देनी, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि यार इंशाल्लाह ये जो भी काम है आई वुड डू इट एंड आई विल डू इट, मैं हमेशा करूँगा ये. देन कम द luck. Although I strongly agree with these all things, मतलब कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, ऑप्टिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान, उनसे सवाल किया गया कि हज़रत अली से कि आप बताएं कि मौला जब भी हम खुदा से कुछ मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, तो क्या मांगना चाहिए, इल्म या मुक़द्दर, लक. तो उसने सोचा कि ये इल्म का दरवाज़ा है, नबी पाक शहर थे तो ये उसका दरवाज़ा है इल्म का, तो ये ज़रूर कहेंगे कि इल्म. हज़रत अली ने फरमाया जब भी अल्लाह से मांगो तो अच्छे मुक़द्दर मांगो, अपना लक मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े इल्म वालों को मुक़द्दर वालों के आगे झुकते देखे, उनके आगे काम करते देखे. सो बड़े बड़े जो मुक़द्दर वाले लोग होते हैं, एजुकेटेड नहीं भी होते, इल्म नहीं भी होता, लेकिन वो उनके पास बड़े बड़े एम्प्लॉयड जो बंदे हैं, उनके एम्प्लॉय बहुत बहुत पढ़े लिखे और बड़े बड़े PhD स्कॉलर्स काम कर रहे होते हैं. सो अच्छे मुक़द्दर, लक आपका बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान होने में. सो व्हाट कैन यू डू टू गेट सक्सेस इन रिगार्ड्स टू योर स्टडीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू डू इट. आपने इसके बारे में मुझे मिनिमम आई नीड 5 to 7 पॉइंट्स जो आप लिख के मुझे स्पेशली सबसे पहले ये भेजेंगे कि स्टडी के अंदर आपने सक्सेसफुल कैसे होना है, वो आप क्या सोचते हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, your cousins, your brothers or sisters, or from internet, wherever you want, but I need your points और आपने इसके ऊपर लिखना है. That is all for today. So your first comprehension passage is over. Thank you for watching this. Kindly हर लेक्चर और पूरा लिया करें, पूरी वीडियो सुना करें, just like you listen to me in your school. Thank you so much students. Allah Hafiz. Take care.